प्रश्न संख्या 21 शौकत राय जी। Question number 21. माननीय मंत्री जी, पहले उनको तो बोलने दो, अब आप पूछ लें। I'm in a quandary regarding this question because it would not be my priority. Anyway, it has come. This relates to handing over of Delhi Airport Metro to the Delhi Metro Rail by the Anil Ambani owned Reliance Delhi Metro Company. Now, my quandary is this. On the one hand, I do not want any Anil Ambani led company to be paid money from the exchequer. On the other hand, because he was involved in Rafale, and on the other hand, the question is the court has ordered that DMRC pay money to Anil Ambani's company as per the arbitration order. Now, I would like to, obviously, there were major faults by the Delhi Metro Authority. One is in drawing up the memorandum of understanding with Anil Ambani led. आपका प्रश्न क्या है? अभी सवाल में आ रहा हूँ, एक मिनट, एक सेकंड में. तो I want to know from the Honorable Minister as to whether he has fixed the responsibility for drawing up a faulty contract. And again, it said that there were safety issues. Large number of cracks were there in the Delhi Metro line. Now, have you fixed responsibility for the same, for the faulty contract and the faulty construction? And what action have you taken against those responsible? Honorable Speaker, sir, I'm somewhat intrigued. The honorable member says that this was not a priority question for him. So the first question that arises is, how does this question become priority number one? But I'm ready to answer it. This was an agreement between two private entities, one legal entity. A concessionaire agreement was entered into between Delhi Airport Metro Express Private Limited and DMRC on 25th August 2008 for running the airport metro line for 30 years. As is well known, the entity which was awarded that contract, because the line in the initial phases was not viable, was looking for an opportunity to exit that arrangement. They said that some civil construction, I'm sorry, I come back to civil aviation, I apologize to my learned friend. Yeah. Some civil construction defects were there. And according to the arrangement entered in, within 90 days of a notice being served, effective steps had to be taken to rectify those defects. And sir, those defects were rectified. The Commissioner for Railway Security certified the line to be perfectly safe for operation, and DMRC operated that line for a long period thereafter. Now, I don't want to continue this beyond a point. Since we are talking about an arbitral award, my answer is very clear. DMRC has already deposited some money, and the issue of the implementation or execution of the arbitral award is before the Honorable Delhi High Court. But let me read out two observations on the arbitral award. I now know it's been subsequently overtaken by event, but this will give the honorable member an idea of what we are dealing with. I'm reading out from page 66 of a 97-page judgment issued by the High Court of Delhi on 15 January 2019. That is where the perversity of the areas issue comes in. And I'll read out para 98. In the light of the aforesaid discussion, we would hold that the impugned award suffers from perversity, irrationality, and patent illegality in the face of the award in the form of confusion
and ambivalence as to the termination notice and the date of termination. Most importantly, the arbitral tribunal had ignored and did not consider vital evidence of certification for commercial operations accorded by CMRS while deciding the question of civil structure faults and in holding that no effective steps to cure the defects were taken. Now I read out another sentence. Certification by CMRS was binding and its validity was not capable of submission to arbitration. Cumulative effect of the aforesaid discussion is that the award shocks the conscience of the court. The award shocks the conscience of the court, and one of the learned judges who passed this order is now sitting on the apex court, the Supreme Court. I'll read out another one so that we have no question on what is happening in this case. I am getting excited because I'll come to you that also in a minute. Why I'm getting excited? May I complete this, and then I will tell you why I'm getting excited. Because I find it, let me complete this. Let me read out now para 109. We find that the reasoning is completely flawed and perverse and would falter when we supply the principles as held in Associate Builders Supra. This reasoning suffers from the patent illegality, defies logic, and is irrational, which no reasonable person could formulate. This is obvious and patent from the face of the award itself. Honorable Speaker, sir, I am not aware whether another supplementary has been asked, but permit me to answer the Leader of Opposition here, sir. If you have a... नहीं, आपको अनुमति नहीं है, इनको दी नहीं मैंने अनुमति, तो आपको अनुमति क्यों दूंगा? तो मैं इनको फिर अलग से जवाब दे दूंगा कि मैं क्यों एक्साइटेड हो जाता हूं। जब इनको अनुमति दो तो तब आपकी अनुमति दूंगा। आप तो वो नाम हमारी तरफ फेंकते हैं, आप तो नाम हमारी तरफ फेंकते हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सोगत राय जी, सप्लीमेंट्री, सोगत राय जी, माननीय सदस्य। सर, मेरा एक तो छोटा सा सप्लीमेंट्री है। मंत्री जी दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर से पढ़ा, लेकिन द मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट upheld the arbitration order. Now, what is happening is the DMRC, which is government entity, is having to pay rupees 1.75 crores daily as interest. तो मेरा सवाल ये था सर, बहुत सिंपल. आपका सवाल और इनका जवाब, हाँ, दोनों का अगर आंसर देखूं मैं, एक मिनट प्लीज बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए. आपका प्रश्न और आपका जवाब, आपने कहा ये मामला सब जुडिशियल है, तो डिस्कस होना ही नहीं चाहिए था इस विषय है सब जुडिशियल? कैसे नहीं? माननीय मंत्री जी, अजब बोलिए. अब मेरी बात सुनिए सर. मंत्री जी ने जवाब दिया सब जुडिशियल है. नहीं बोला मैं. आप पढ़ो जवाब. क्या है? सब जुडिशियल नहीं बोला. लिखा है मध्यस्थता के निष्पादन के समय मामला वर्तमान में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष है. सर, आप ये समझने का कोशिश कीजिए कि अभी तक जो ऑर्डर निकला है उसी का अनुसार. मैं तो पूरा बैकग्राउंड. मेरी बात सुनिए ना, थोड़ा धीरज रखिए सर, मैं आपको समझाऊंगा. 1.75 करोड़ रोज इंटरेस्ट में देने पड़ेगा, और आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है उसमें बोला 1551 क्रैक्स था कंस्ट्रक्शन में, 367 गार्डर में. मेरा सवाल तो सिंपल है. मेरा सवाल ये नहीं है कि अनिल अंबानी को पैसा मिलेगा कि नहीं. मैं तो नहीं चाहता हूँ उसको कुछ पैसा मिले, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कौन रिस्पॉन्सिबल था ये गार्डर में डिफेक्ट के लिए. एक सेकेंड मंत्री जी, ना जल्दी मत करिए सर. कौन रिस्पॉन्सिबल था? सवाल ये और कौन रिस्पॉन्सिबल था ये फॉल्टी एमओयू ड्राफ्ट करने के लिए, जिसके कारण अनिल अंबानी के कंपनी को ये ऑर्डर मिला? सर, सांसद महोदय जो सवाल प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपकी अनुमति चाहूंगा कि उसके बारे में एक दो चीजें बताऊं. 2008 में ये एग्रीमेंट हुआ था, ये 2012 और 13 की बात है. कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने सर्टिफाई किया था that all the defects had been completed and there was no faulty contract. Point 1. Point 2, every contract has to be interpreted by the two sides. There was no faulty contract. The defects had to be
corrected or effective steps taken within 90 days. That was done. So the issue of any faulty contract which the honourable member is raising is not correct. The honourable member keeps coming to the latest situation. तो हमने जो प्रश्न के उत्तर में हमने बताया, Delhi Metro Rail Corporation, this is an entity not of the government. It is owned 50% by the central government, 50% by the Delhi government. It is a legal entity whose board has today. It is a legal entity of which Government of India has 50% and Delhi government has 50%. So its board will take the issue. आप दोनों क्यों डिबेट कर रहे हैं? Can I complete? आप अपनी बात कीजिए। complete करके, they have already deposited 1,678.4 crores in the escrow account, and the matter, I read out the final sentence. The matter regarding execution of arbitral award is currently before the Honorable Delhi High Court, and I'm going to add, the Government of India reserves all its rights to ensure that its interests are safeguarded. Thank you, sir. पर माननीय सदस्य, आपने प्रश्न तो यही पूछा था कि इसका निपटारे में विलंब क्यों हुआ। आप कह रहे हो ना, मैं उनकी पैरवी नहीं कर रहा, पर आपने प्रश्न ये पूछा था कि उनके निपटाने में विलंब क्यों हुआ। ये आपकी जानकारी में रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 आपको सप्लीमेंट्री मैंने दे चुका हूं। तीसरी सप्लीमेंट्री का रूल्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 के एस सुंदरम सर। क्वेश्चन नंबर 22 माननीय मंत्री जी। स्पीकर सर। अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। Sir, my supplementary question, whether the Civil Aviation Ministry will increase the international flights from Coimbatore Airport to USA, UK and other European countries. Thank you. अध्यक्ष जी, ये प्रश्न जेवर हवाई अड्डे पर है, पर फिर भी माननीय सदस्य ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की बात की। जैसे आपको विदित है कि अभी हम लोग ओमिक्रॉन वेव के अंतर्गत ये सेक्टर बहुत प्रभावित हुआ है, हवाई सेवा भी बहुत प्रभावित हुआ है। जैसे हम लोग नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद स्थिति का हम लोग जायज़ा ले सकते हैं। अभी वर्तमान में एयर बबल्स की स्थिति में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं और यही वर्तमान की स्थिति है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री, माननीय मूल प्रश्न सप्लीमेंट्री। थैंक यू स्पीकर साहब। पी वेलुस्वामी जी, आपको मैं बोलूंगा जब आप उठना। अभी आप सप्लीमेंट्री नहीं पूछना चाहते? नो सप्लीमेंट्री। पी वेलुस्वामी जी। Thank you, Speaker sir. Supplementary question. Under Udan scheme, whether the ministry will provide small airport at Palani, the Hindu pilgrimage center of Lord Muruga, who is worshipped by several lakhs of Hindus. Thank you, sir. अध्यक्ष जी, ये प्रश्न मूल प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। उड़ान योजना के तहत हर एक राज्य के एयरपोर्ट्स को हम लोग शामिल कर रहे हैं। वर्तमान में 4 उड़ान की योजनाओं के तहत और 4.1 मतलब कुल मिलाकर 5 गुटों में बांटा हुआ जो टेंडर लगा हुआ है, उसके तहत करीब 950 उड़ान के बिड्स लगे थे, जिसमें से करीब 403 बिड आउट हो चुके हैं। नो, माननीय सदस्यगण, आप ऐसे सब वरिष्ठ सदस्य हैं। जो मूल प्रश्न है वह जेवर एयरपोर्ट का है, ठीक है ना। आप पूछ सकते हैं, एक अलग बात है, लेकिन मूल प्रश्न जेवर एयरपोर्ट का है। इसलिए उन्होंने उस प्रश्न का जवाब भी दिया है, उनके प्रश्न का जवाब भी दिया। पर मूल प्रश्न तो यही है ना। ऑनरेबल मंत्री तो अंग्रेजी बोलते हैं, जरा जवाब हिंदी में मत दीजिए, ये अपमान है लोगों को सर। ना, ये अपमान नहीं है। किसी भाषा में हिंदी में जवाब दूं भाई, ये बड़ी अजीब बात है अध्यक्ष महोदय। इनको इतराज हो रहा है, अगर हम हिंदी बोले तो इनको इतराज हो रहा है। हमारे सदन में ट्रांसलेटर्स हैं, उसमें क्या कठिनाई है अगर हिंदी में मैं उत्तर दे रहा हूँ? ये बड़ी अजीब बात है। राजू विष्टा जी। धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से आप पूछिए सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं। दार्जिलिंग में बागडोगरा एयरपोर्ट पड़ता है और अपनी क्षमता से 4 गुना अधिक पैसेंजर कैरी कर रहा है, और रनवे के बाद पार्क करने के लिए 5 से ज़्यादा जो है एट ए टाइम फ्लाइट खड़ी नहीं होती। कई बार फ्लाइट ऊपर उड़ते उड़ते उनको कलकत्ता लैंड करना पड़ता है,
और केंद्र सरकार ने योजना उसको अपग्रेड करने की अप्रूवल भी दी है, 600 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मिली है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के कारण ये योजना अटकी हुई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार के कारण वहां की जनता को जो कठिनाई हो रही है, आप उसमें कुछ हस्तक्षेप करके हमारे काम को जल्द से जल्द करा सकते हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न भी जेवर एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जो सांसद महोदय ने मुद्दा उठाया है बहुत ही मार्मिक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रदेश सरकार के साथ हम लोगों की पत्रचार चल रही है, मैंने चर्चा भी की है और हमारी कोशिश रहेगी केंद्र सरकार के तरफ से कि जल्द से जल्द बागडोगरा एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण जल्द से जल्द हम लोग समाप्त करें और माननीय सांसद जी के साथ मैं मिलकर भी इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा। श्री गौरव गोगोई जी, आप। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो जेवर एयरपोर्ट है, इसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, यहाँ पे लिखा है ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल। हम जानना चाहेंगे क्योंकि एक नया एयरपोर्ट आ रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, तो केंद्रीय मंत्री इसका विवरण करें कि टेंडरिंग का क्या प्रोसीजर था और ज्यूरिक एयरपोर्ट के इंडियन पार्टनर्स कौन है और उन इंडियन पार्टनर्स के एयरपोर्ट मैनेजमेंट में उनका क्या अनुभव है। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे सांसद भाई ने उठाया है। मैं समझाना चाहता हूं कि ये एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं लेकिन राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है और ये एयरपोर्ट केवल राष्ट्र के लिए नहीं लेकिन आने वाले दिनों में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने की संभावना इसकी है। ये एयरपोर्ट की नींव 2001 में रखी गई थी जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और कई कारणवश 20 साल ये कई उलट खटलट खाते खाते अंत में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में बनी, तब इस सकारात्मक प्रयोग के साथ प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास 25 नवंबर 2021 को किया। ये एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी के अंतर्गत बनाई जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स उत्तर प्रदेश सरकार 37.5%, नोएडा 37.5%, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 12.5% और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 12.5%। ये शेयर होल्डिंग है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी की। एक नोडल अथॉरिटी बनाई गई थी जो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने इस प्रोजेक्ट को बिड आउट किया। 4 बिडर्स आए थे, उसमें से ज्यूरिक एयरपोर्ट जो विश्व स्तर की एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी है, उसकी सबसे हाईएस्ट बिड थी पर पैसेंजर फी प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को देने की। उन्हें चुना गया और ज्यूरिक एयरपोर्ट ने एक नई कंपनी स्थापना की है, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके तहत इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। मैं बताना चाहता हूं आपके द्वारा सदन को और मेरे माननीय सांसद जी को कि ये 4 फेज में क्रियान्वयन होगा और आने वाले समय में स्टेज 1 में 7 करोड़ यात्रियों के लिए यह सुविधा बन जाएगी, जो वर्तमान में दिल्ली एयरपोर्ट की साइज है अध्यक्ष महोदय। और कुल मिलाकर 2 रनवे बनेंगे और दूसरे स्टेज में 3 अतिरिक्त रनवे बनेंगे और ये 22.5 करोड़ की क्षमता की एयरपोर्ट बनने वाली है आने वाले समय में और एशिया की सबसे बड़ी एयरपोर्ट, जैसे मैंने कहा, उसकी संभावना रखती है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 23, 3 दीपक वेज, हाउस। श्री बेनी बैनन। Sir, thank you, sir. Sir, fuel price in India is one of the highest in the world. Today, these prices are being determined by the various oil companies as it's under their discretion. Earlier, India had an oil pool account. Thus, even when the price of crude oil increased in the international markets, the government could subsidize from the oil pool account and control the price hike. When the oil pool account was disabled, there is no subsidy available here. This has contributed the fuel price hike. Another important reason for the price hike is the increase in central and state government taxes.
which is happening without any scientific standards. So in order to curb the fuel price, whether the government could subsidize, decrease the taxes and fix petrol and diesel rates in the range of 70-80 rupees in accordance with the current international crude oil. Thank you, sir. Sir, I would like to inform the honourable member that the issue of deregulation of petrol and diesel prices, this was a decision taken in June 2010 by the then government of the day, and for petrol, and for diesel it was taken in October 2014. Sir, prices of petrol and diesel in any country in the world are determined by international prices in a deregulated situation. And as I mentioned, petrol and diesel were deregulated in the year 2010 and 20. Now, over an extended period, if you look back at the history of prices, I can tell the honourable member that between 1973 and 79, when we had an administered price system, prices rose by 140%. Between 79 and 86, prices rose by 122%. Between 86 and 93, prices rose by 125%. Sir, I'm mentioning 7-year periods because that is the period from 2014 to 21, which is of the present government. And sir, between 2000 and 2007, prices went up by 70%. Between 2007 and 14, by 60%. Sir, in the last 7 years, the prices have gone up by only. Can I complete this? Sir, in the period 2014 and 21, prices have gone up by 30% only. Prices are determined, sir, by 3 factors. One is the international price. When the economic slowdown took place or the economic lockdown took place in March 20, in March 2020, when there was an international lockdown, the price of international crude came down to $19.56 a barrel because there was surplus crude available in the market and there were no takers. When economic activity picked up, this price has gone up to now a much higher figure. The price is determined by the price at which the international production quantity is made available. OPEC Plus makes the available production. Can I complete? Sir, the situation is that today the 3 factors making for it is the cost at which price is worked out by the market depending on the quantity that OPEC Plus puts into the market. Just now, we have a situation where the amount of crude available in the market is less than the demand. That's why the price is high. Therefore, we are in touch with the producing countries and we try to use our margin of persuasion to tell them to make more crude available. Equally, it is determined by the exchange rate, the freight rate and the dealer margin. Now, we have taken a number of steps to meet this situation, sir. The government, a little while ago, reduced the excise duty on petrol and diesel by 5 rupees and 10 rupees respectively. Sir, the state governments equally impose a VAT. Out of the money that we collect out of excise duty, we have to spend on urban rejuvenation, Ujwala and all the other schemes. I would appeal to those honourable members who are exercised about this to tell their state governments, including in Tamil Nadu, to reduce the amount of VAT that is charged. I'm very happy to hear that. Now we have a situation where the government is acutely sensitive about the price at which petrol and diesel become available to the consumer at the bunk. We are increasing the ethanol blending. Sir, in the previous government's time, we didn't go up to 1.15%. It's 9% now. Sir, the issue of petrol and diesel prices,
was deregulated by the then Congress government. And finally, I want to tell them, one method that they adopted of maintaining a stabilization was to float oil bonds in the year 2005. They floated oil bonds for 1,41,000 crores, which have resulted in 3,20,000 repayment. So we are now, last year we paid out 20,000 crores. And this was done by them in order to maintain stable prices. No, I'm very happy to answer further supplementaries as well. And I can fully understand that. क्यों आप प्रश्न पूछे? आप क्यों कहते हो कि प्रश्न पूछे? आप खुद ही आदेश करते थे और प्रश्न पूछो. Sir, thank you, sir. Sir, the minister has been speaking about percentages when it suits him, about value of money when it suits him. But I would like to ask, when you decontrol the prices, and you said you have reduced 10 rupees, I would like to ask the minister very clearly, when the prices are increased now in the international market, how come you have not increased the prices of the petrol? Is it because of the current elections in 5 states, especially Uttar Pradesh? You don't want to increase the prices, even though earlier when you increased the prices, you were so in a hurry. You were in a hurry. Every time there's an election, you want to pull back. But is it an actual decontrol or is it your or remote control? The oil marketing companies are by definition marketing companies. Sometimes when the price is low and they collect extra cushion, they can utilize it at an ad. We don't tell the oil marketing companies whether to raise prices or lower them. They have to determine. Unlike the Congress and the previous government, where they had an administered price mechanism. Sir, whether it is due to what? We have elections. ये सवाल पूछ रहे हैं. सरकार के नियंत्रण में है या नहीं? आप जवाब दे दो. Sir, the answer is we don't make that determination. We only decide the amount of excise. धन्यवाद. क्वेश्चन नंबर 24 सुधाकर संग्रे जी. क्वेश्चन नंबर 24. माननीय मंत्री जी, एक उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया. अध्यक्ष जी. अध्यक्ष महोदय, 2019 को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के जन्म दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री और अपने गजेंद्र शेखावत जी ने भूजल योजना की शुरुआत की थी, जिसमें देश के हर घर को नल की योजना के तहत पीने का पानी पहुंचाने का निर्णय लिया था. आप सभी जानते हैं कि लातूर जिले को ट्रेन के द्वारा पानी दिया गया था. मैं पहली बार चुन के आया हूं. मैं जल शक्ति मंत्री से एक पत्र के द्वारा पत्र देकर मैं चर्चा किया था उनके साथ. अब तो आपको योजना आप तो प्रश्न पूछो ना. अब एक मिनट से मैं उनसे चर्चा किया था. उन्होंने कहा था कि जब भी कोई लातूर जिले के बारे में कोई योजना बन सकती है पानी के बारे में, तो मुझसे चर्चा किया जाए. तो उन्होंने मेरे लातूर जिले को इस विषय में सम्मिलित किया. मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने प्रधानमंत्री को भी बहुत धन्यवाद देता हूं. मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है, सर, जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को 2024 तक पेयजल कनेक्शन प्रदान कर रही है, परंतु नियमित व लंबे समय तक पेयजल आपूर्ति निश्चित करने के लिए जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण के साथ साथ जल संचालन और रखरखाव भी अति आवश्यक है. इस विषय में सरकार ने स्थानीय ग्राम पंचायत आदि के सहयोग से जल आपूर्ति योजनाओं के नियमित संचालन के रखरखाव करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदस्य का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पर जो चुनौती सामने आती है उसके बारे में प्रश्न पूछा है. पहले तो उन्हें जो बात कही है, तो लातूर की जो योजना है, चूंकि महाराष्ट्र 2024 में अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, इसलिए लातूर की योजना 310 करोड़ की है जो स्वीकृत हुई है. तो दूसरी बात उन्होंने पूछी है कि ये स्कीम्स चलेंगी कैसे. भारत सरकार ने पूर्णतः इस बात को स्पष्ट किया है कि कैसे
इनको संचालित किया जाएगा तो पानी समितियां बनेंगी और जो भी स्थानीय निकाय उसमें मदद कर सकते हैं उसमें स्पष्ट तौर पर पूरा प्रावधान है कि पानी समितियां बने और उसमें 50% महिला बहनों की हिस्सेदारी होगी और उसके संचालन की जिम्मेदारी उनके पास में होगी। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं? योजना के तहत अब मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, योजना के तहत आपूर्ति के लिए जाने वाली जल की गुणवत्ता बनाए रखा जाना भी अधिक अत्यधिक जरूरी है। क्या सरकार ने वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस फ्रेमवर्क से वाटर क्वालिटी को नियमित रूप से बनाए रखने के लिए कोई कदम उठाया है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? उसके साथ लातूर में भूमिगत जल के स्तर को और गिरने से बचाने के लिए क्या सरकार ने कोई कदम उठाए है, तो उसका ब्यौरा क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं 2-3 बातें आपके माध्यम से सदन को भी बताना चाहता हूं, उनका भी उत्तर हो जाएगा। जो भी नल जल का कनेक्शन होगा मुखिया के आधार नंबर से वो लिंक्ड होगा। जो प्रॉपर्टी होगी वो जियो टैग होगी। जो बात पानी की गुणवत्ता की पूछी गई है, हर पंचायत में 5 महिलाओं को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो अलग अलग जगहों से सप्ताह में एक बार पानी की सैंपलिंग करें और वो खुद ही तय करें कि वो पानी पीने लायक है या नहीं। यदि कोई सैंपल उनको लगता है कि ठीक नहीं है तो जिले की प्रयोगशाला में जा सकते हैं। हजारों की संख्या में प्रयोगशालाओं को स्थापित किया गया है। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनमें जिला मुख्यालय से नीचे ब्लॉक स्तर पर भी प्रयोगशालाओं को रखा है और इसलिए मुझे लगता है मैं इस बात प्रश्न के पूछने के लिए सदस्य को धन्यवाद भी करता हूँ। श्री बालकनाथ जी, TN प्रतापन जी, Honorable Speaker, sir, many state governments and local body authorities are implementing Jal Jeevan project as their initiatives. Even this is a union government project. MPs are often not informed about the implementation. Whether the government produce a circular to ensure the acknowledgement of the preparation of participation of union government in this project. Sir, there is no proper source of water in the Har Ghar Jal projects. Jal Jeevan Mission should make sure and allocate fund for improving the source of water. Thank you, sir. माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कम से कम उस योजना के अंदर माननीय सांसद को तो बुलाएं। धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य की चिंता केवल माननीय सदस्य की नहीं, सदन के बहुत सारे सांसदों की भी इस तरह की जो है दुख और दर्द है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण योजना कि प्रत्येक घर तक पीने का पानी मिले और माँ बहनों को पीने का पानी घर के बाहर से लाने के इस अभिशाप से मुक्ति मिले, पिछले 2 साल में इस पर तेज गति से काम हुआ और लगभग 6 करोड़ घरों तक हम नए पीने का पानी का कनेक्शन दे पाए। केंद्र सरकार की योजना होने के बावजूद भी जल क्योंकि राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें अपने इन स्कीम्स के फाउंडेशन स्टोन ले करने या इनॉग्रेशन के समय सांसदों को बुलाने में कहीं न कहीं राजनीतिक कारणों से कोताही बरतती हैं। हालांकि हमने जब गाइडलाइन इशू किया था तभी उसमें प्रोविज़न किया था कि जो भी डिस्ट्रिक्ट विलेज वाटर एक्शन प्लान बनेगा वो प्लान सांसद से अप्रूव कराया जाना चाहिए और उसके लिए हमने एक विंडो बनाया था कि 15 दिन के लिए उसको भेजा जाए और 15 दिन में उनकी अनुमति उनसे प्राप्त की जाए। लेकिन मेरे संज्ञान में आया है कि मैं जो है यहाँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि राज्यों में अभी इसको लेकर के बहुत शिथिलता है। हमने राज्यों को बार इसके लिए आग्रह किया है। आपके इसी सदन में मैंने पहले खड़े होकर के ये जानकारी दी थी कि नवंबर 2020 में हमने राज्य सरकारों को एक सर्कुलर जारी करके और यह आग्रह किया था कि हर एक कार्यक्रम में, चाहे वो फाउंडेशन स्टोन लेन का कार्यक्रम हो या उद्घाटन का कार्यक्रम हो जल जीवन मिशन,
माननीय सांसदों को उसमें ड्यूली सूचित आमंत्रित किया जाना चाहिए और उनकी गरिमा के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे कहते हुए दुख होता है कि राज्य सरकारें इसे अभी ठीक से लागू नहीं कर पा रही हैं। हमने एक बार फिर पिछले वर्ष में भी राज्य सरकारों को इसके बारे में पत्र लिखा है, लेकिन क्योंकि जल राज्य का विषय अंततः राज्य सरकारों को ही अपने वहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं करनी है। जिन राज्यों में प्रतिकूल सरकारें हैं, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के अलावा अन्य विचारधारा की सरकारें हैं, वहां तक तो ये व्यवस्था होती तो भी ठीक था। कई प्रदेश ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी वहां के सांसदों को इस तरह की सूचना नहीं मिलती है। आपके अगर आदेश है तो एक बार फिर हम राज्य सरकारों से आग्रह करेंगे कि सांसदों की गरिमा के अनुरूप इस कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रित किया जाना चाहिए। राजीव प्रताप रूडी। अध्यक्ष जी, पानी का मामला है। मैं तो पहले भी डायरेक्शन दे चुका हूं। अधीर साहब, आपकी तरफ से ये फिर इनको भी डांटिए सर, थोड़ा सा जोर से। अध्यक्ष जी, कल मैं बहुत दुखी था और कल से आज ज्यादा दुखी हो गया। अब कल एक सवाल आया था, उसके उत्तर आपने मुझे उठने नहीं दिया तो मैं चुप रह गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिहार के बारे में था। आज जो मैं देख रहा हूं तो ये पूरे सदन को हताश कर देगा और पूरे बिहार की जनता को हताश कर देगा। और मैंने ऐसा तो तथ्य देखा ही नहीं था सदन के भीतर। मैं कोई सरकार मेरी है बिहार में, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन बिहार सरकार को पिछले साल केंद्रीय सरकार ने 6,600 करोड़ रुपया आवंटित किया और आपके उत्तर में यह दिया हुआ है कि जीरो ड्रॉल, यानी कि बिहार की सरकार ने 1 रुपया भी राज्य केंद्र सरकार से नहीं लिया। मैं मंत्री जी जानना चाहूंगा, क्या आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि बिहार सरकार आपसे नाराज है, कि आपके विभाग से 1 रुपया भी पैसा लेने के लिए तैयार नहीं है? आखिर ये ऐसी क्यों स्थिति है? एक तरफ नीति आयोग कहता है कि बिहार सबसे पिछड़ा है, सबसे अंतिम पंक्ति में है, और यहाँ 6,600 करोड़ रुपया सैंक्शन किया हुआ है, लोकेशन है, और बिहार सरकार नो ड्रॉल। अब मैं किससे पूछूं? बिहार की जनता किससे पूछेगी? मंत्री जी बताइए, या तो आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है, आपने किसी को दुखी कर दिया है। आप बताइए पूरे देश को और बिहार के 12 करोड़ जनता को कि बिहार सरकार ने 6,600 करोड़ रुपया आवंटित का 1 रुपया भी नो ड्रॉल, जीरो। आपने प्रश्न पूछ लिया ना। माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस बात की चिंता जाहिर की है और दुख जाहिर किया है कि बिहार सरकार ने एक भी पैसा जल जीवन मिशन से इस फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉ नहीं किया है। बिहार सरकार, क्योंकि जल, जैसा मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में भी कहा, राज्यों का विषय है और राज्य का विषय होने के नाते प्रारंभिक रूप से स्कीम्स बनाना, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना, ऑपरेट करना, मेंटेन करना, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार केवल उनके इस प्रोग्राम में जो कुछ स्कीम्स उन्होंने कंसीव किया है उनकी पूर्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम के तहत 50% पैसा अंशदान के रूप में देती है। बिहार राज्य ने अपने यहाँ पर हर घर का जल को कनेक्शन देने की योजना जल जीवन मिशन से पहले प्रारंभ कर ली थी और बिहार सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए उसके हिसाब से बिहार ने लगभग 90% का आंकड़ा अभी प्राप्त कर लिया है। बिहार राज्य अगर इसमें बिहार राज्य में जो पिछले वर्ष की जो टोटल उनके पास में ओपनिंग बैलेंस था, उसके बाद में उन्होंने विड्रॉल के लिए कहीं भी एक भी पैसा न तो मांगा है और न ही लिखा है। अब केंद्र सरकार जब तक राज्य इसके बारे में कोई भी डिमांड रेज नहीं करेगी, उसमें पैसा नहीं दे पाएगी। राज्य को यदि आवश्यकता हो तो इस एलोकेटेड फंड में से वो जो राज्य के एलोकेटेड है तो तुरंत इसमें मांग करेगी, तो हम इसमें पैसा उनको प्रोवाइड। राजीव रंजन जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रूडी जी ने जो सवाल पूछा उससे कई तरह के कंफ्यूजन उन्होंने क्रिएट करने का प्रयास किया। वास्तव में सुनिए ना, दूसरा का भी सुना करिए। वास्तव में 2015 में हर घर नल का जल योजना बिहार में शुरू हुई और 2019 में केंद्र की सरकार ने इस योजना को बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की। तो 2015 से लेके आज तक हम उसको अपने संसाधन से कर रहे हैं
अब ये बात कर रहे हैं वो कहां से उठा दिए विशेष राज्य की दर्जा की बात, तो उस पर भी अभी इनको हम बताएंगे। लेकिन जो माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा और अभी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात की चर्चा की थी और उन्होंने कहा कि बिहार के, मुझे खुशी है कि बिहार के 90% घरों में आज नल का जल पहुंच रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि क्या ये बात सही है कि अब तक का जो भी योजना बिहार में लागू हुआ है वो बिहार के प्रदेश ने अपने संसाधन के बल पर किया है या नहीं? ठीक है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि 2015 में बिहार सरकार ने अपने रिसोर्सेज से ये स्कीम चालू की थी, लेकिन मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूं कि उस समय देश की सरकार की NRDWP योजना चालू थी और NRDWP योजना नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के तहत जो अन्य राज्यों को फंडिंग की गई थी उसके अनुकूल फंडिंग बिहार राज्य सरकार को भी की गई थी। बिहार के राज्य के घरों में पानी पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार ने तत्कालीन स्कीम के तहत पैसा दिया था। जल जीवन मिशन के तहत भी पिछले 2 साल में हमने लगभग 2000 करोड़ रुपया बिहार राज्य को अंशदान के रूप में लगभग 2000 करोड़ रुपया बिहार राज्य को अंशदान के रूप में दिया है। विनायक राउत जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन है और केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से जो निधि प्राप्त होते हैं तो जिला परिषद के माध्यम से इस योजना का अमल की जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि सांसदों को इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व करने का आदेश फिर एक बार दे ताकि उन अपने क्षेत्र के लिए अच्छी तरह से हम काम कर सके। मैं एक विनती करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि 2 फेज में इस योजना का अमल की जा रहा है। एक फर्स्ट फेज 1 में जो पुरानी जो स्कीमें है, पुरानी योजना है, उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है और दूसरा फेज 2 में नई योजना का अमल करने का काम किया जाता है। मेरी प्रार्थना ऐसे है कि जहां पहाड़ी इलाके रहते हैं, पहाड़ी गांव रहते हैं, तो वहां इंडिविजुअल गांव में पानी की उपलब्धता बहुत कम ही हो रही है। जैसे कि महाराष्ट्र में सूखा प्रवण जो जिले हैं, लातूर हो, बीड़ हो, ऐसे जिले में पानी मिलना मुश्किल होते, तो मल्टी विलेजेस स्कीम का इम्प्लीमेंट अगर करते, जहां बड़ी डैम है, डैम से पानी की बड़ी लाइन अगर डाले और अनेक गांव में पानी की सप्लाई देने की व्यवस्था करते तो अच्छे हो सकते हैं। क्या मंत्री महोदय मल्टी विलेजेस स्कीम का अमल जल जीवन मिशन में लाने का आदेश देंगे? माननीय अध्यक्ष जी, पहले से ही जो प्रारूप है उसमें मल्टी विलेज स्कीम का प्रावधान है। मैं भी महाराष्ट्र के यहाँ गया था, मैं माननीय सदस्य से कहूँगा थोड़ा उसको करेक्ट कर लें। वास्तव में नल जल योजना में एक इकाई को यानी पंचायत को भी पानी देने का प्रावधान है और अन्य बहुत सारे सैकड़ों की मात्रा में भी जो पंचायत या गांव है उनको भी सामूहिक रूप से पानी देने का प्रावधान है। लेकिन जिन पुरानी स्कीम की वो बात कर रहे हैं, 2 चरणों की बात नहीं है। भारत सरकार ने ये अनुमति दी है कि कोई पहले से अगर वाटर सप्लाई है और उसके कोई शेष हिस्सा अगर बचा हुआ है तो वहाँ पर एक्सटेंशन के लिए भी हमने गुंजाइश दी है। लेकिन ये सच है कि हमने कहा है कि खुले बांधों के जरिए या नहरों के जरिए पानी का प्रबंध करके हम हर घर तक जल पहुँचाने के लिए संकल्पित हैं और इसमें कहीं DPR बनाने का प्रावधान राज्य सरकारों के पास ही है और अगर कोई गतिरोध है तो आप अपने क्षेत्र में अपनी सरकार से बात कर सकते हैं। श्रीमती सुप्रिया सुले। थैंक यू सर। सर, ये बड़ी स्कीम है और दोनों राज्यों में और हमारा अच्छा काम चल रहा है, लेकिन जो O&M है, जो मेंटेनेंस और ऑपरेशंस का जो खर्चा होता है उसमें आज भी प्लानिंग में दिक्कत होगी आगे से। इसके बारे में आपके फंडिंग में कुछ सोचा है क्या? जस्ट लिमिटेड टू O&M अभी काम तो के लिए इसमें महिलाओं को प्रबंध दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। जस्ट स्पेसिफिक O&M, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का खर्चा। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, O&M को लेकर के पहले भी सदस्य ने चिंता जाहिर की थी। जैसा मैंने बार बार कहा है, अनेक अवसरों पर कहा है कि राज्य का विषय होने के नाते प्राथमिक रूप से ये प्रबंधन करना, इस पर विचार करना, ये राज्य सरकारों का विषय है। लेकिन सामान्यतः स्कीम्स को, क्योंकि जल जीवन मिशन में हमने सारी स्कीम्स को इस दृष्टि से बनाया कि आने वाले 30 साल तक वो स्कीम्स कारगर रहें। छोटी मोटी मेंटेनेंस के कारण से गांव की स्कीम्स जो हैं वो बंद न पड़ी रहें।
क्योंकि अनुभव यह आया सामान्य रूप से क्षेत्र में काम करते हुए, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी कह सकता हूँ कि बहुत छोटे विषय के कारण से, कहीं मोटर जली है, कहीं पंप जला है, कहीं लीकेज हो गया है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है, किसी छोटे छोटे विषय के कारण से स्कीम्स बंद पड़ी रहती है। हैंडपम्प जो होते थे पुराने ज़माने में, एक वाशर के कारण से 6-6 महीने हैंडपम्प मेंटेनेंस का इंतजार करते थे। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने ये तय किया कि हमको गाँव को इसमें स्वायत्तता देनी चाहिए, गाँव के लोग इसमें ओनरशिप लें। और ओनरशिप लेने के लिए प्रबंध किया गया कि गाँव में जो है जो विद इन विलेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसमें जो खर्च होगा उसका 10% सामान्य गांव में और 5% जो है वो SC ST और स्पेशल विलेजेस में 5% पैसा गांव के लोग योगदान करें, ताकि उनका एक सेंस ऑफ ओनरशिप बने। गांव में एक पानी समिति बने जिसमें, जैसा आपने अभी कहा और मैं अभिनंदन करूंगा, आपने हमें अप्रिशिएट किया कि उसमें 50% महिलाओं की भागीदारी रहे, ताकि वो पीने के पानी का प्रभाव सीधा उन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, इसलिए वो इसको सुनिश्चित करें। जो पैसा एकत्रित होगा वो पैसा प्लस उसके बराबर दूसरा पैसा 10% पैसा वो मिलाकर के भारत सरकार वो 10% पैसे को अपने पास नहीं रखेगी, वो सारा का सारा पैसा जो है वो गांव में उस पानी समिति के अकाउंट में जमा होगा। लगभग जो पैसा जमा होगा उस पैसे से गांव में पानी समिति सामान्य मेंटेनेंस के काम को अपने आप कर पाएगी, ताकि उनकी सरकार पर निर्भरता नहीं रहेगी। लेकिन उसके अतिरिक्त यदि कोई और बड़ी आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से राज्य सरकारों को आने वाले समय में अपने विषय को लेकर के इसमें प्रबंध करना चाहिए। क्योंकि पिछले प्रश्न के उत्तर में माननीय राज्य मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर दिया था, संयोग से जो अभी प्रश्न पूछा है माननीय सदस्य भी उसी प्रांत से आती हैं। मैं आग्रह करूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार को मैं उनसे कहूंगा कि वो अपनी सरकार से चर्चा करें। इस बार महाराष्ट्र सरकार के पास में ओपनिंग बैलेंस 268 करोड़ रुपए था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 7064 करोड़ रुपए का उनको इस बार एलोकेशन किया था। कुल मिलाकर के 7000 करोड़ रुपए, 64 करोड़ और राज्य का अनुदान, यदि मैं राज्य का अंशदान अगर मैं मिलाऊं तो लगभग 14,500 करोड़ रुपए का उनके पास में इस बार एश्योर्ड फंड है। जो है महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट डॉक्यूमेंट्स में और बाद में ये एश्योर किया था कि हमने 5000 करोड़ रुपए का एलोकेशन भी किया है, लेकिन महाराष्ट्र का आज तक का रिपोर्टेड एक्सपेंडिचर पिछले बजट का कुल मिलाकर के जो है वो 483 करोड़ रुपए है। 14,500 करोड़ रुपए के सामने अगर 483 करोड़ रुपए खर्च होगा, और इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में अगर महाराष्ट्र जैसा प्रदेश जिसमें अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पीने के पानी की उपलब्धता नहीं है, लोग संकट में हैं, वहां किस तरह से हम आपूर्ति और लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। मैं माननीय सदस्य से और महाराष्ट्र के सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो अपनी राज्य सरकार को इसके बारे में आग्रह करें, अपनी राज्य सरकार को इसके बारे में थोड़ा जो है आगे काम की गति प्रदान करने के लिए आग्रह करें। क्वेश्चन नंबर 28 श्री मोहम्मद फैजल जी का कवर क्लब किया जाता है। मोहम्मद फैजल जी। Sir, to my question, part C, the plan for reviewing the pending projects. The answer you have given, sir, in that answer, all the states and union territories are mentioned except Lakshadweep. I would like to know what is the reason whether Lakshadweep administration have not responded to the question, or you have been asked the details, because Lakshadweep is a place where on the national average potable water is very limited because it is surrounded by saline water and the drinking water problem is acute in the Lakshadweep. So in this table of the events, there is no progress shown as far as Lakshadweep is concerned, and I would like to know from the minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि लक्षद्वीप का नाम उसमें नहीं है, वास्तव में गृह मंत्रालय के पास में जो लक्षद्वीप की व्यवस्था है उसकी दृष्टि से लक्षद्वीप की जो वर्तमान की स्थिति है वो जरूर मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी लक्षद्वीप में 5 स्थानों पर आपके कल्पनी, अमनी और किल्टन, तीर्थगाद और एंडेट, इन स्थानों पर काम चल रहा है और उम्मीद है कि 2022 तक ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि लिस्ट में नाम इसलिए नहीं है कि कैबिनेट के समय में, चूंकि वो गृह मंत्रालय के उसमें आता है इसलिए सूची में नहीं है, लेकिन उसकी चिंता बराबर है। और जब गृह मंत्रालय ने
इस तकनीक के बारे में पूछा था तो बाकायदा जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी तरफ से जो राय दी थी उसी तकनीक के साथ इतने स्थानों पर काम शुरू हो गया है। और ये भी हमने सुझाव दिया था, चूँकि ये बहुत खर्चीला कार्यक्रम है और लक्षद्वीप की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें जनसंख्या का घनत्व कम है, उसकी तुलना में जो भी प्लांट लगेंगे वो अत्यंत खर्चीले होंगे। उसके बावजूद भी 5 जगह पर काम प्रारंभ हुआ है। 2022 तक ये पूरा होगा, चरणबद्ध तरीके से पूरा हो। ये जल शक्ति मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को सुझाव दिया है और मैं विश्वास करता हूं कि हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल लक्षद्वीप में मिलेगा। श्री हसनैन मसूदी जी। आजकल कश्मीर में क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है और ज़्यादा इससे मुतासिर रहती हैं खवातीन, क्योंकि जब पानी नहीं होता तो उन्हीं को जाके पानी लाना पड़ता है दूर दूर से 4-4, 5-5 किलोमीटर से। सर, कश्मीर में कई एक ट्यूबवेल हैं जो डोनेट की गई है ज़मीन लोगों की तरफ से और वो बंद पड़े हैं, करोड़ों रुपए उन पर लगाया गया है, लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है। सिर्फ इस वजह से कि आपके डिस्प्यूट्स हैं उनके साथ, लैंड ओनर्स के साथ जिन्होंने डोनेट किया है। कोई कहीं पर उनसे वादा किया गया था आपको नौकरी दी जाएगी या कोई और वादा किया गया। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि वहाँ की सरकार से आप कहें कि वो सारे वो मामले सुलझाएं ताकि वो ऑपरेशनल हो जाए और उनका लाभ आवाम को मिले और जो जल जीवन है, जो पीने का पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो उपलब्ध हो। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया, जो विषय संज्ञान में लाए, निश्चित रूप से उस विषय का अध्ययन करके वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इसका समाधान करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 25 श्री चंद्र प्रकाश चौधरी। On the table of the House. Sri K.G. Madhav. Thank you very much, Speaker, sir. Can the Honorable Minister please state whether the government has identified a location in Andhra Pradesh among the 12 locations where it proposes to set up second generation 2G ethanol plants that use non-edible oil seeds and non-agricultural residue? Honorable Speaker, sir, this question relates to the roadmap for E20 and whether the vehicles which will be using E20 will be compatible. Sir, the question that the honorable member has raised on 2G, as far as I am aware, there is one 2G plant using cellulistic thing in Haryana and another one in, I think, the northeast, which is going to make it from bamboos. But if there are any others, I will be happy to find out the information. As far as I'm aware, no such decision has been taken. But then 2G itself, using cellulistic material, is itself a very new technology. And I think the further decisions on where else to have 2G plants will depend on our experience with the existing ones to make it from bamboo and in Haryana, as I mentioned. But I would be happy to share with the honourable member such information that may be available. But as I said, so far, as far as I'm aware, there is no decision on additional and where those additional plants will be located once a decision has been taken. Sri Nama Nageshwar Rao. Thank you, sir. सब ये जो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है देश के लिए, रोड मैप फॉर द एथनॉल ब्लेंडिंग। मंत्री जी का जो आंसर है, कोई भी रोड मैप फॉर द एथनॉल ब्लेंडिंग बोलते हो, रोड मैप जो है ना, जैसा कैसा स्टार्ट होता है, कैसा कंप्लीट होता है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपका प्लान होना चाहिए। आप जिस तरह से जो रिप्लाई दिया है, ये रिप्लाई जो ना पूरा रिप्लाई नहीं है। पहले तो आपको जब 10% जो अभी तक फुलफिल नहीं किया, 10% जो हम लोग एथनॉल ब्लेंड करना था, उसमें 8% तक अभी तक पहुंचा है। और नेक्स्ट टारगेट इज 20% का जो है एथनॉल ब्लेंडिंग का। आज के दिन में जो है एथनॉल जो बनता है, मोलासिस से बनता है, मेज से बनता है, ब्रोकन राइस से बनता है। मोस्ट ऑफ द शुगर प्लांट जो है ना, ऑलमोस्ट जो है एथनॉल प्लांट्स लगा दिया है, जबकि 10% कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका रोड मैप में दो चीज जो है ना आप मिसिंग कर दिया है ऑनरेबल मिनिस्टर। एक तो जो है आपका रॉ मटेरियल के बारे में आपका रोड मैप नहीं है। आपको जो है ना फिनिश्ड मटेरियल जो है ना 20% के लिए आप बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का रोड मैप क्या है? जो पूरा रॉ मटेरियल है, ये पूरा रॉ मटेरियल जो भी मोलासिस होगा, मेज होगा, नहीं तो ब्रोकन राइस होगा,
ये सब जो है ना फार्मर का प्रोड्यूस से आता है। एक तरह से जो है ना हम लोग का पैडी प्रोक्यूरमेंट के लिए स्टॉप कर रहा है। दूसरे तरह से मोलासिस ऑलमोस्ट जो है ना 80 to 90% जो है ना ऑलरेडी बन रहा है। और कौन सा रॉ मटेरियल से जो है ना 20% आप पे करेगा। आप रोड मैप में पहले थे जो रॉ मटेरियल के साथ स्टार्ट करके फार्मर को भी इंक्लूड करके उसको प्रॉपरली थोड़ा आपको आंसर देने से अच्छा रहेगा। थैंक यू। या करेंगे क्या? ओके सर, मैं माननीय सदस्य को रोड मैप के बारे थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है उसका शुभारंभ अब नहीं हुआ। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, मुझे इसका खुद का अनुभव है। 2005 और 6 में जब मैं ब्राजील में पोस्टेड था, उस समय की सरकार ने चाहा कि हमारे 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग होनी चाहिए, सिर्फ 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से। जहां तक मुझे याद है, माननीय शरद पवार जी उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, और ये जो 5% ब्लेंडिंग जो कोशिश की गई वो भी सफल नहीं हुई। और जहां तक मुझे याद है 1.54% ब्लेंडिंग थी 2014 तक। एथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों जरूरी है? Because we have the natural endowments, we have the land, we have the sunshine, we have the agricultural produce. Pehle, the entire ethanol blending program was anchored in sugarcane. But there were difficulties because sugarcane is heavily dependent on water. Therefore, a decision was taken to broad-base the feedstock and to include, apart from sugarcane, maize, broken rice, feedstock in our, which is not otherwise fit for consumption. And then futuristic technologies were added, such as 2G, about which there was a reference in the earlier, and as my honorable member and friend is reminding me, the 2G also includes from bamboo. Now, in order to be able to have a roadmap, we have to involve both the oil marketing companies, which will procure and produce the ethanol, and also that will depend on the raw material of feedstock which is available. Therefore, a national plan has been drawn up, which, according to the original target set for the roadmap, was to have E20 by 2030, sir. 2030 tak. But because we were successful in implementing from 1.54% in the road towards the next target, which is 10%, the government thought it fit to bring forward, because of all the other problems, because of the availability, shortage of crude, high prices, to bring that 2030 target forward to 2025. And I want to remind the honorable member that today we are in a position where last month we have, in January, we are today on 4th February, we have already exceeded the 9% mark. Now there are some marks. So we are confident that from 9% to 20% in the period between now and 2025 is doable. What we have done is to float tenders to dedicated ethanol plants who, apart from the sugar and ethanol, the other plants are being set up, and today we are drawing up, because, for instance, in the state of Bihar, let me give you a background. We had calculated how much ethanol will be required according to present facts and projection between now and 2030. Bihar, the requirement was 17 crore liters. But when the tenders were floated, the requirement which came from Bihar was astounding. And I had a discussion with the government there. उन्होंने कहा, देखिए हमारे यहाँ और कोई इंडस्ट्री नहीं है, इस पे कर दीजिए। तो हमने एक बोल्ड स्टेप लिया। हमने कहा, अच्छा अगर बिहार में इतनी डिमांड है एथेनॉल की और एथेनॉल प्लांट लगाना चाहते हैं, तो हम उसको डबल करते हैं, 17 करोड़ लीटर से हम 34 करोड़ हमने कर दिया। और हमने रिव्यू कर रहे हैं सब जगह कि आप मान लीजिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक चीज होती है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आने के बाद आपको ये इंडिकेट करना होता है टेंडर के बाद कि आप में ये एबिलिटी है इसकी फाइनेंसिंग करवाने का, क्योंकि आप बैंक्स के पास भी जाएंगे, कुछ फाइनेंशियल पैकेज भी होगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि अभी आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट कि हम 2025 तक जो 20% का टारगेट हो वो मीट हो जाएगा। हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स से डायरेक्ट बात करने की हमारे को जरूरत नहीं है, क्योंकि जब टेंडर फ्लोट होगा तो जो टेंडर फ्लोटिंग अथॉरिटी होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट जो करेगी, और बाकी लोग वो विश्वास दिलवाएंगे अपने आप को कि द पर्सन हु इज bidding for the tender has the feedstock in order to be able to implement the target. Sir, I can repeat the same thing in English. I can repeat the same thing in English. प्रश्नकाल समाप्त। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 से 9, श्री मुरलीधरन जी। Respected Speaker, sir, with your permission, on behalf of my senior